خلافت دوم کے زمانے میں ایران کی عظیم سلطنت کی سرحدوں سے متصل ملک عراق میں ایک چھاؤنی بنائی گئی۔ اسی چھاؤنی سے سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں اسلامی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چھاؤنی تمام فتوحات اسلامی کا مرکز بن گئی اور ایک وسیع و عریض شہر کی صورت اختیار کر گئی جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر صدر اسلام کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا۔ سعد بن ابی وقاص، عمار یاسر، ولید بن عقبہ ان افراد میں سے تھے جو کوفہ کی عمارت کے عہدیدار ہوئے۔ ولید بن عقبہ خلیفہ سوم کا رضائی بھائی تھا۔ اسی بلبوتے پر بے مہار اونٹ کی طرح کوفے میں اس نے تمام اسلامی اقدار کو رون ڈالا تھا اور کوفے کے بیت المال کو اس طرح نگل گیا تھا کہ بقول امام علی علیہ السلام جیسے اونٹ موسم بہار کی نرم کلیوں کو نگل جائے۔ مسجد کوفہ 37 ہجری کے بعد کا دور۔ گھوم جا، رک جا، سر جھکا، چلا بیٹھ جا۔ کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا۔ اب تم نکال، نکال اپنی تم، اب زبان نکال۔
بس کر منحوس، تو غلط پیدا ہو گیا. انسان کے بجائے اگر تو کتا ہوتا تو چین سے جیتا. چل جانور، آجا آجا آجا، گھوم جا گھوم جا. اب بیٹھ جا بیٹھ جا. کیا ہوا؟ کتا بننا اچھا نہیں لگا جاہل؟ چل انسان بن جا. مجھے یقین تھا تو ضرور پچھتائے گا. पागल. شمشیر. مردان. بڑی تیز تلوار ہے ولید کی. مسلمان کی تلوار اس کی جان لے گی اور ساحر یہودی کی رحمت سے اسے دوبارہ زندگی ملے گی. اب کون جیتا اور کون ہارا، ولید یا جادوگر؟ منہ کی بجائے آنکھیں کھولو. انسان ہے. ہنس کے دکھا، رو کے دکھا. دیکھا، اسے ہنسنا اور رونا اچھی طرح آتا ہے. ہم میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے جرم کیا اور اسے سزائے موت ملی. اب اس نے کیا کیا نہیں معلوم. اب وہ حاکم کوفہ کے حکم سے سزائے موت کا حقدار ہے. اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. پہلے اس کی گردن اڑاؤں گا تاکہ حکم ولید بجا لاؤں. پھر اسے زندہ کروں گا تاکہ ساحر یہودی کی رحمت سے نوازوں. اس کے بعد تو ایک عجوبہ رہے گا حیوان. تجھے زندہ رہنے کے لیے اب مرنا پڑے گا. تو مر جا. ٹھہر جا ساحر. موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا تیرے؟ تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ دادا کو زندہ کر. تو اپنے جادو کے دھوکے کے ذریعے اسرار خلقت کا مذاق مت اڑا مشرک. کوفے میں کتنے امیر ہیں. ایک ولید جو ساحر کی عزت کرتا ہے تو دوسرا اسے مشرک کہتا ہے. ساحر ڈرے یا غرور کرے؟ تم ہو جندب، توبہ کرو توبہ کرو. حاکم کوفہ پر اعتراض، خلیفہ پر اعتراض ہے. توبہ نہیں، شکر کروں گا. توبہ تو کر کے فعل حرام کا مرتکب تو ہوا ہے. ولید، تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی؟ نہ مسلمان راہب ہے اور نہ مسجد دیر. مسلمان تاریخ دنیا نہیں ہے جندب. عبادت بھی کرتا ہے اور وقت پر تفریح بھی. عبادت کی جگہ محراب مسجد ہے نہ صحن مسجد. تم جو مسجد کے بیت الخلاء میں مودتے ہو تو کیا گناہ کیا؟
मजाक उड़ाया जा रहा है और तुम हंस रहे हो। अगर नौजुबिल्लाह साहने मस्जिद में कोई जिना करे तब भी हंसोगे? कहां गई तुम्हारी खैरात? जहन्नम की राह ली है तूने वलीद, तौबा कर। सहरो जादू लोगों को अंधा कर देता है। हमने तो तमाशा ही देखा है जुंदब। साहिर यहूदी है, उस पर मुसलमान का हुक्म जारी नहीं होता। साहिर तेरी इजाजत से मस्जिद में आया है वलीद। मैं तो सहाबी रसूल था, लेकिन जब देखा कि ये साहिर गधे के मुंह से अंदर गया और उसके पीछे से बाहर निकल आया, मैं खुद लरस गया। क्या तूने ये ना सोचा कि हम मुसलमान साहिर के बहकावे में आकर खुदा का इनकार कर बैठे? बोल, ये तफरी है या शिर्क के दर्दीन? देखो क्या हालत बना रखी है तुम्हारी। मोजज़े मूसा तो खुद ज़ात मूसा है, असा वजदहा तो इंसान की जहालतों पर खुदा का तंज है। दिल बुरा मत करो अपना। जिसने जादू का इनकार किया उसने असाए मूसा और दमे ईसा का इनकार किया। जिसने इन दोनों का इनकार किया वो मुनकिर खुदा है। कुफ्र मत बक मुशरिक। असाए मूसा और दमे ईसा सहर न था, गवाह नबूवत था और दो नबियों का एजाज। तू चाहता है कि इसको मार के दोबारा जिंदा करे? मौत और हयात का मालिक खुदा है या तू? जादू इल्मे गैब है। जो इल्मे जादू जान ले वो असरारे खिलकत जानकर मोजिजा कर सकता है। खुदा गारत करे इन मक्कार मुल्हिदों को। ये शख्स अपने दावे के मुताबिक काफिर हरबी हो गया है। तेरे झूठ को आश्कार करके दिखाऊं? क्या कर लोगे? अब उठ के दिखा, उठ के दिखा। अपने आप को जिंदा कर, दूसरों को जिंदा करने वाले। कहां गया तेरा दावा? कहां है? कहां है तेरा दमे मसीहा? कहां है असाओ अजदहा? उठता क्यों नहीं? मार दो उस दीवाने को, उड़ा दो उसकी गर्दन। सहाबी रसूल खुदा को कत्ल करेगा वलीद? खून का बदला खून है। उसने तो जादूगर के फितने को खत्म किया। जादूगर कोई हैवान तो नहीं था, तेरा हम मजहब था या रिश्तेदार? ओ वैशी, इंसान था इंसान। खुदा के घर में शहरो जादू हराम, आदम कुशी हलाल। खाने खुदा मकान अमन है या नहीं? अय्युहन्नास, अगर काजी कूफा ने जुंदब के खिसास का हुक्म दिया तो हमारी कौम कबूल करेगी। इब्ने मसूद को खबर करो अर्दम, जल्दी। जल्दी करें हुजूर, जल्दी कीजिए। Haman has Zaman here. Kirdar.
अलैकुम अस्सलाम वरदान। कभी दो अरब देखे हैं जो मिलजुल कर रहते हो, या एक दूसरे की गीबत करते हैं, या अपने ऊंट को बेचकर तलवार खरीदते हैं। क्या हो गया वरदान, जल्दी किस बात की? मस्जिद कुफा में हंगामा हो गया है शेख। यहूदी साहिर का कत्ल हो गया है। किसने कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया? जुंदब अजदी ने। जल्दी कीजिए हुजूर, अजदियों ने तलवार खींच ली है। जुंदब अजदी। ربنا افرغ علينا الصبر. तुमने क्या देखा जुंदब? मैंने देखा कि यह साहिर ऊंट की शक्ल में आकर रस्सी के ऊपर चल रहा था और उसके बाद इस गधे के मुंह से दाखिल हुआ और उसके पीछे से बाहर निकल आया। उसने इस गरीब को पहले कुत्ता बनाया और चाहता था उसे कत्ल करके दोबारा जिंदा करे। मुझसे यह जादू देखा न गया, मजबूरन टोकना पड़ा। अय्युहन्नास, तुम्हारे दरमियान कोई है जो जुंदब के बयान की शहादत दे सके? शेख, शहादत अजदी कबीले से न हो। क्या तुम ये जमानत दोगे कि पत्थर, कूड़ा, करकट और ये लोगों के जूते शहादत देने वालों के सर पर नहीं पड़ेंगे? ये तुम अपनी बकवास से लोगों का वक्त बर्बाद न करो। मैं जमानत देता हूं। गवाही देता हूं, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ न कहूंगा। जो न देखा वही कहूंगा। आज मैंने धोबी का एक कुत्ता देखा जो न घर का था और न घाट का। खामोश, कासिदे बदखबर, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अफसोस की बात है कि तुम्हारी झोली में झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। कूफे वालों, कबीले अज़्द और असद की गवाही नहीं लूंगा। मेरी बातों को जुस खुदा न कोई समझ सकता है और न तहम्मुल कर सकता है। मैं शहादत देता हूं कि जो कुछ जुंदब ने देखा है वो मैंने भी देखा है। इस कूफे के भरे मजमे में क्या अबा खुताम ही आखिल बालिग शाहिद है? हुक्म देने के लिए मुझे और भी शहूद की जरूरत है। शेख, खुदा शाहिद है और हम सब शाहिद हैं। हम भी जुंदब के कौल की तस्दीक करते हैं। जुंदब क्यों साहिर को कत्ल किया? रसूल खुदा से मैंने सुना कि साहिर की सजा तलवार का एक वार है। मैंने भी एक ही वार किया है, न कम न ज्यादा। ये हदीस तो मैंने भी रसूल खुदा से सुनी है। ताहिर को जो तुमने एक ही वार में कत्ल किया है, कोई हरज नहीं और न उसके खून का किसास है। लेकिन तुमने खुदा के घर में खून बहाकर गुनाह किया है। तौबा करो और कफारा भी दो। शेख, जिस हदीस की तुमने रसूल की तरफ निस्बत दी है, क्या खलीफा भी तस्दीक करेंगे? मेरी सदाकत पर शक हो तो खलीफा ही से मालूम कर लेना। जाहिरन खलीफा का फतवा कारसास्तर होगा।
खलीफा का फतवा मदीने से कूफे पहुंचने तक जुंदब मेरी कैद में रहेगा। दीनार, वरदान, उसे कैद कर लो। उठो। वलीद, अगर तूने मुझे कैद न किया तो अपने बाप की औलाद नहीं, तू उसी उक़बा की औलाद है जो रसूल पर जानवरों की गंदगी फेंका करता था। चलो चलो, बस करो, चलो। बद्र के 70 असीरों में से उक़बा ही ऐसा शख्स था जिसे रसूल के कहने पर कत्ल कर दिया गया। ऐ लोगों, ये वही वलीद इब्न उक़बा है जो बेहुक्म मुअल्लिफ़त क़ुलूबिहिम मुसलमान हुआ। कुरान फासिक कहे उसकी बात का एतबार न करो। ये मुझे कैद कर रहा है ताकि मौका पाकर कत्ल कर दे। वलीद, खुदा की कसम, अगर तुमने खलीफा के फतवे को बदलने की कोशिश की तो हमारी तलवारों से नहीं बच सकोगे। मुद्दतों से कबीला असद के अजदी कबीले के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वलीद ने कोई गलती करने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तुमने हम क्या उससे कर जंग दिया करेंगे बंदे और खुदा? जुंदब को उससे आजाद करेंगे। हमारे होते हुए वलीद कोई गलती नहीं कर सकता। वलीद हमारी इज्जत से खेलना चाहता है और हम इसको नहीं करेंगे। चलो अंदर। दीनार, देखा अज़दियों ने कैसा हंगामा किया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस कैदी को 7 दरवाजों में बंद करके रखता और हर एक पे 7 ताले लगाता। तुम वलीद के निगहबान हो वरदान। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो 7 ज़िरा पहनता और हर ज़िरा पे दुआ पढ़ के पहनता। चलो दीवाने कहेंगे। मुझे कह रहे हो? और नहीं तो क्या? क्या चीज की कमी थी तुझे, चारे की या पानी की? मुझे परवाह नहीं है। चाहे यूसुफ है या जिंदान, जहन्नम सुना है, यही है। रफ़े हाजत की जरूरत पड़ी तो क्या करूं? जहां बस इतना पानी मिलेगा कि होंठ भिगो लो, और खाना भी इतना कि तुम जिंदा रह सको। रफ़े हाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो। बारिलाहा, राजी हूं तेरी रजा पर, मेरी ज़रबत को कबूल फरमा। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मान लिया कि जुंदब पर हुक्म क़िसास नहीं है। खुले आम हाकिम कूफा को जलील करना कहां सही था? तुम खलीफा की बैत में हो। खुदा से डरो शेख। तुम जैसे आलिम फाजिल काजी को क़ज़ावत में उम्मत का ख्याल रखना चाहिए। जान के भी अनजान बनते हो वलीद। तुम्हें पता है कि हम अपने उसूल के पाबंद हैं। उसूल?
नबूवत उसूल दीन में है या फुरू में? उसूल दीन मुझसे पूछ रहे हो वलीद? रसूल खुदा ने सुलह हुदैबिया में क्या किया? जब देखा कुफ्फार आपकी रिसालत को नहीं मानते तो जानते हो ना क्या किया? हुक्म दिया कि अहदनामे से उन्वान नबूवत को हज़्फ कर दिया जाए। रसूल खुदा का ये हुक्म उसूल दीन में था या नहीं? रसूल खुदा खुद साहिब वही थे, मुकाम नबूवत पर फाइज थे। ये हक हमें हासिल नहीं है वलीद। अफसोस है कि तुम जैसों ही से मुस्लिमीन को खतरा लाहक है। डरो उस दिन से जब खैसर और कसरा की सरजमीन पर तफरका मुसलमानों की कमर तोड़ देगा। उस वक्त ना असल बचेगा ना फर, ना हम बचेंगे ना तुम। तुम खतरे को तो जानते हो वलीद, लेकिन उसकी वजह नहीं समझना चाहते। मैं जो अमर बिल मारूफ करता हूं, तफरका फैलाता हूं, या तुम मस्जिद में तमाशा करवाकर। तुम खलीफा के नुमाइंदे हो, लोग खलीफा की जगह तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी सुनते हैं। तुम्हारी जर्रा बराबर गलती भी पहाड़ बना ली जाएगी। लोग तुम्हारे किरदार में खलीफा को परखते हैं और तुम्हारे गुनाहों सवाब में खलीफा को शरीक करार देते हैं। तुमने अबू जुबैर नसरानी को अपना हमदम बना रखा है, मुसलमानों के बैतुल माल से उसे मालामाल कर देते हो। क्या तुम हराम और हलाल इलाही को नहीं जानते? मस्जिद में यहूदी साहिर से तमाशा लगवाकर इस्लाम के इख्तिदार का मजाक उड़वाते हो। अबू जुबैद साहिर यहूदी। अबू जुबैद नसरानी था जो मुसलमान हो गया। साहिर यहूदी को क्या सिर्फ अफवाहों पर सजा देना था? सजा से पहले उसका जुर्म तो देखते। चलो कत्ल हक था, कबूल, लेकिन सजा कौन देता? मजनून असदी अपने कबीले की तलवारों के घमंड में। दौरे जाहिलियत अब कहां रहा, जो अपने कबीले की तलवारों के जोर से हद जारी करते फिरे। जरूरत तदबीर की है, तासुब की नहीं। खुदा करे कि गुफ्तार और किरदार में तुम एक रहो वलीद। रहने दो, मैं कूफे के बैतुल माल का खजांची हूं। बैतुल माल से तुमने 1,00,000 दीनार का कर्जा लिया है। तारीख अदायगी से 1 माह ज्यादा हो चुका है। अदायगी की मोहलत बढ़ा दो। आखिर कब तक? मैं जब तक मुस्तती हो जाऊं। जायज नहीं समझता। क्यों? तुम मुस्तहक नहीं हो वलीद। खलीफा के हुक्म को मान लोगे? हुक्म खलीफा अगर खलीफा खुद लिखे तो हाँ। ये अजीब तंज है शेख। खलीफा की अजमत को दागदार न करो। खलीफा ने तुम्हें मनसब दिया है, कूफे का खजांची बनाया है, कजावत की कुर्सी पर बिठाया है। क्या बेइंसाफी नहीं जो उनके लिखे पर शक करने लगो? तुम खलीफा को झूठ न लिखो, मरवान मेरी चुगली न करे। फिर खलीफा जो भी लिखे मेरे सर आंखों पर, उनका लिखा मेरे लिए हुक्म है। मैं खलीफा का अमीर हूं, मरवान उनका मुशीर है। क्या खलीफा नालायक अफराद को मनसब देंगे? हमारी एहानत खलीफा पर एतराज है, खलीफा से बैत सिकानी है। मैं खलीफा से बैत तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं। बैतुल माल के 1,00,000 दीनार वापस लौटा दो, समझे? एक 1,00,000 दीनार को ऊंट की मेंगनिया समझता है।
डर गए वलीद, बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है अबू जुबैर। मोहम्मद के खास सहाबियों में से है। जो मोहम्मद की गुलामी करे, उनकी जूतियां तक संभाली हूं, वो मामूली आदमी नहीं होता। मोहम्मद की गुलामी का शरफ अगर मुझे भी मिलता, इब्ने मसूद की तरह मुहाफिज रसूल होता, तो देखते मैं भी कितना गजबनाक होता। गुलाम होना तो कोई बड़ा मुकाम नहीं होता है वलीद। ये भी तो देखो गुलाम किसका है। खुराफात परस्ती तो हमेशा रही है, हमें एहतियात करना चाहिए। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो साहिर को मस्जिद में क्यों ले गए? इसी बात पे तो पछता रहा हूं। ज्यादा पछताने की जरूरत नहीं है अबू जुबैर। जब तक गलती न करो दोस्त और दुश्मन पहचान में नहीं आते। साहिर को मस्जिद में बुलाकर मैंने अपने दुश्मनों को पहचान लिया। माविया अगर शाम में खुदाई करता है तो उसकी वजह उसने अपने दुश्मनों के मुंह बंद कर रखे। किसी को माल से तो किसी को तलवार से। तेरे पास क्या है वलीद? न तो इतना माल है न तलवार है। ना होने की वजह से जो अफसोस करे वो हार गया। पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखना मैं जुंदब को नहीं छोड़ूंगा अबू जुबैर, वरना मुझे कूफा छोड़ना पड़ जाएगा। जुंदब का क्या करोगे? कल रात उसके कटे सर को शराब पिलाऊंगा। उससे मार डालोगे? ये राज हमारे और वरदान के दरमियान रहेगा। वलीद, अज़दियों को क्या जवाब दूं? जुंदब को कत्ल कर दूंगा और जुंदब को भगा ले जाने के जुर्म में अज़दियों से जहाद करूंगा। देखना मैं भी कोई मजबूर हाकिम नहीं। नहीं वलीद, ऐसा काम मत करो। काजी कूफा तुम्हें बदनाम कर देगा। वलीद, अपने आप को रुसवा न करो। वलीद, बुढ़ा बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया है। मरवान अगर उसकी अज़ल का हुक्म निकलवा दे तो शक्कुल कमर किया। तुम परेशान क्यों हो अबू जुबैर? वलीद, बनी अज़द बड़े खरदमाग लोग हैं, उनसे डरो वलीद। वस्फुलैश, निस्फुलैश। शायर साकी तो गजलें सुनाता है, कुछ गजलें सुनाओ शायर।
پر کن زاب تو به سوز حیاتت پیالم ساقی بکش عقلم چه حاصل گر سلیمان تخت دارم باغ بر دست چیره بر خورشید مرا گر نوح عمری باشدم فرجام خواجه بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جو رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بے حکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا. بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. ولید تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا. ولید تم جیسوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پہ نہیں دیکھی اسلام نہیں لائے. اس قدر گرے ہو تم لوگ. تو قرآن کے روح سے فاسق ہے. تم لوگ تو مؤلفۃ قلوبہم میں سے ہو. پیغمبر نے تمہیں عزت دی, مال و مقام دیا, غنائم میں سے زیادہ حصہ دیا تاکہ تمہارے دل نرم ہو. تم جیسوں نے ولید ہرگز خدا کو نہیں مانا, ہرگز.